Yeah, hi guys, and welcome back to the channel. And in this particular video we will be talking about what are the some techniques which you can use for Django optimization, because Django is a very big gigantic framework, and when you are building some application that you want to scale for a lot of user, let's suppose you want to scale for lakhs or millions or billions of user, then definitely you must use these techniques. Apart from these techniques, definitely you need to go for vertical or you can say horizontal scaling, but these technique will definitely help you apart from when you are scaling some using some vertical or horizontal scaling. So a lot of you need to manage, because the code which we run on Python can execute fast, although we need to manage some stuff, but the major part which slow your application, that comes from, you can say, database part. Because when a lot of users directly comes into the picture and your database gets slow, because it needs to fire a lot of queries like get, post and all these queries, you can say creating, updation, deletion, then there might be a scenario that your database can slow. And what you can using these techniques definitely will help you out. So let's jump into the system and let's see. Before going to the video, I have a very important information, and if you don't know about Newton School, let me tell you, Newton School is an e-learning platform where you can get full stack developer training in just 6 months, and you get a placement above 5 lakh LPA in India. And once you get placed, you need to pay the amount, otherwise there is no upfront fee until you get placed. Okay, and you can see a lot of big companies directly hire from Newton School. So if you want to become a full stack developer in just 6 months with minimum guaranteed of 5 lakh, definitely you can go for a Newton School. And there are a lot of students who have got very high packages from Newton School, so you can give it a try, and the link is a description section. Definitely do check the link. So now let's look at some ways where we can optimize it Django. And the first thing that I told you is we can do is database optimization, and under database optimization we get a thing that's called query optimization. And हालांकि majority of time जो भी optimization हम करते हैं, that's around query optimization. And the first thing that comes under this category is called database indexing. And if you don't know database indexing क्या होती है, let me tell you. Database indexing is a kind of a generating a B tree. Let's suppose आपके पास बहुत ज़्यादा डेटा है एंड आप फिल्टर कर रहे हो, तो आप थोड़े दिन जब आपके पास डेटा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, देन यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ओके नाउ माई क्वेरीज आर गेटिंग स्लोअर. जब मैं पहले डेटाबेस में फिल्टर करता था तो वो बहुत जल्दी डेटा फेच होकर के आ जाता था, बट नाउ व्हेन आई एम ट्राइंग टू filter the data, it's taking a lot of time. So what you can do is you can generate a B tree, or you can say indexing, database indexing. So आप database indexing ऐसे कर सकते हो. लेट्स सपोज आपके पास कोई टेबल है प्राइस करके, एंड उस पर आप db index इक्वल टू 2 ऐड कर दोगे, तो वैसे ही जब आप python manage.py एक कमांड होता है उसको एग्जीक्यूट करोगे, तो फिर आपकी इंडेक्सिंग क्रिएट हो जाएगी, एंड कह सकते हो बैकग्राउंड में B ट्री जनरेट हो जाएगा. एंड इसका एक स्पेसिफिक वीडियो अगर चाहिए तो आई बटन पर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो. वहाँ पे डिटेल वीडियो बताया गया कि कैसे आप डेटाबेस Django के अंदर डेटाबेस इंडेक्सिंग को अचीव कर सकते हो. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट्स कॉल्ड कैशिंग, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट यू डू इज एज वी नो डेटाबेस में जब हम चीज़ें क्वेरी करते हैं, देन इट डेटाबेस की जो क्वेरीज होती है वो थोड़ी ज़्यादा कॉस्टली होती है इन टर्म्स ऑफ कैशिंग. सो व्हाट वी कैन डू, लेट्स टेक एन एग्जांपल. लेट्स सपोज देयर इज एन वेबसाइट कॉल्ड Amazon, एंड वहाँ पे हम डेटाबेस इंडेक्सिंग कैशिंग को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं. सो व्हाई डू वी नीड कैशिंग? सो कैशिंग के लिए कैशिंग हमें क्यों ज़रूरत है, हम देखते हैं. सो लेट्स सपोज कोई एक पर्सन ए है, वो कोई अहमदाबाद में है, एंड वो सर्च करता है कोई एक प्रोडक्ट को, एंड जिसका नाम है यू कैन से MI का फ़ोन, और यू कैन से LG का फ़ोन है. ओके, एट द सेम टाइम हो सकता है जिस टाइम पे वो सर्च कर रहा है, तो एट द सेम टाइम कोई केरला में एक बंदा है या फिर कह सकते हो पर्सन है जो कि सेम चीज़ को क्वेरी कर रहा है. सो इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली क्वेरिंग एवरी टाइम हम डेटाबेस में क्वेरी करें, सो व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन ऐड अ कैशिंग लेयर बिटवीन डेटाबेस एंड आवर सर्वर. सो वो क्या करेगा, पहले कैश में चेक करेगा डेटा को, अगर कैश में डेटा मिल गया तो वो वहीं से रिटर्न कर देगा, अदरवाइज व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन क्वेरी द डेटा. सो इससे आपका फ़ायदा क्या होगा कि हर बार आपको DB में क्वेरी नहीं करना पड़ेगा, एंड
रेडिस जो होती है वो रेडिस आप यूज़ कर सकते हो मेम कैश करके लाइब्रेरी लाइक एक डेटाबेस होता है उसको यूज़ कर सकते हो, एंड ये बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं इन कंपेरिजन टू लाइक आपके जो सीक्वल वाले डेटाबेस होते हैं या फिर MongoDB होते हैं या नो सीक्वल वाले डेटाबेस होते हैं, उनसे ये कैशिंग वाले बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं. सो व्हाट वी डू इज़ हम लोग कैशिंग बनाते हैं डेटाबेस एंड सर्वर के बीच में, एंड डायरेक्टली हम कैश में पहले क्वेरी करते हैं. अगर कैश में हमें डेटा मिल जाता है तो वहीं से हम रिटर्न करवा देते हैं. अदरवाइज व्हाट वी डू हम डायरेक्टली क्वेरी करते हैं कहाँ पे, उसमें डेटाबेस में. ठीक है, सो डेफिनेटली यू कैन यूज़ दिस थिंग, एंड इसका भी वीडियो आपको आई बटन पर क्लिक करके मिल जाएगा. वहाँ पे भी मैं ऐड कर दूँगा कि कैसे आप इसको ऐड कर सकते हो. ठीक है, रेडिस वगैरह इंस्टॉल करना सब. एंड जो सेकंड चीज़ है जो कि मैं बहुत ज़्यादा बिगिनर या फिर कह सकते हो जब मैं कोड चेकआउट करता हूँ तो सेलेक्ट रिलेटेड एंड प्रीफेच रिलेटेड लोग नहीं देखते हैं कि क्या चीज़ें होती हैं. एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट जांगो के अंदर है, क्योंकि जांगो की जो क्वेरीज होती है वो लाइक कह सकते हो दे आर लेजी, है ना. जब आप डेटाबेस से फेच करके लेकर के आते हो सीधी सारी चीज़ें, तो फॉरेन की का डेटा नहीं आता है वहाँ पे. तो फॉरेन की का डेटा लेट सपोज है कि स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट का डिपार्टमेंट को आप करना है तो स्टूडेंट डॉट डिपार्टमेंट डॉट नेम करोगे तो वो हर बार फिर से क्वेरी मारेगा लाइक सेलेक्ट ऑल फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर स्टूडेंट डॉट ID इक्वल टू दिस करके. ठीक है, तो ये चीज़ें नहीं करनी है आपको. सेलेक्ट रिलेटेड एंड प्रीफेच रिलेटेड के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए, एंड उसका भी वीडियो आपको आई बटन पर क्लिक करके मिल जाएगा ताकि आप ये सारी चीज़ें चेकआउट करो एंड ये ऑप्टिमाइजेशन यूज़ करो. अब हम नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं, दैट्स कॉल्ड यू कैन से बल्क अपडेट, बल्क मेथड. सो लाइक हमें कोड परफॉर्मेंस जब हम कर रहे होते हैं या फिर हम रिट्रीव कर रहे होते हैं तो वहाँ जो चीज़ समझ में आती है, बट हमें जब बहुत सारा डेटा क्रिएट करना होता है तब हम नहीं करते. सो लेट सपोज मेरे पास एकदम से बहुत सारे स्टूडेंट्स का डेटा आ गया और मुझे क्रिएट करना है, तो मैं लूप करके नहीं करूँगा जा करके कि लाइक एक करके क्रिएट करो जो भी डेटा आया फॉर डी इन डेटा करके, एंड उसके बाद एक करके स्टूडेंट को क्रिएट करो. मैं यहाँ पे बल्क मेथड अपडेट यूज़ करूँगा. और बल्क मेथड होता क्या है, वो मल्टीपल रिकॉर्ड को एक बार में क्रिएट कर देता है एंड इन अ सिंगल क्वेरी. ठीक है, तो इसको भी आप चेकआउट कर सकते हो. एंड रो एसक्यूएल भी हम यूज़ कर सकते हैं, एंड रो एसक्यूएल तब हमें यूज़ करना चाहिए ऑल्दो जागो का ORM इज़ वेरी गुड, बहुत ज़्यादा अच्छा है, बट इन सम केसेस हमें रो एसक्यूएल यूज़ करनी चाहिए जब आपकी क्वेरी बहुत ज़्यादा कह सकते हो कॉम्प्लिकेटेड हो, अंदर ही अंदर हमें जाना होता है, तो वहाँ पे आप डेफिनेटली रो एसक्यूएल यूज़ कर सकते हो. एंड फॉरेन की को हमेशा यूज़ करना चाहिए. उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है दैट्स कॉल्ड मॉनिटरिंग द डेटाबेस ऑपरेशन. इस देखो क्या होता है चीज़ें, अब कुछ लोगों के दिमाग में क्वेश्चन ये निकल करके आएंगे कि अगर हमें चेकआउट करना है कि कब हमारा डेटाबेस या फिर कौन सी क्वेरी बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रही या फिर कौन सी ऐसा एरिया जहाँ पे हमें क्वेरी को या फिर कोड को ऑप्टिमाइज़ करना चाहिए, उसके लिए आप एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो दैट्स कॉल्ड सेंट्री. एंड ये तो पेड है बट आपका फ्री वाले में काफ़ी हद तक काम हो जाएगा अगर आप टेस्टिंग वगैरह कर रहे हो या फिर आप कुछ चीज़ें करते हो एंड आपको लगता है कि अगर ये कुछ लाइक सेंस बनती है, मेक सेंस करता है, तो डेफिनेटली आप इसके साथ जा सकते हो. दैट्स कॉल्ड सेंट्री. एंड सेंट्री को ऐड करना भी बहुत ईजी है, इसका भी वीडियो में है, शायद आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. सो आप इसको भी चेकआउट कर सकते हो. सो सेंट्री क्या है, आप कोई भी आपका एप्लीकेशन हो, आपको अगर मॉनिटर करना है कौन सा क्या चीज़ें हैं, तो इसको भी आप चेकआउट कर सकते हो. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइक कह सकते हो चीज़ है, तो सेंट्री भी आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो. एंड जो नेक्स्ट थिंग आती है दैट्स कॉल्ड कोड ऑप्टिमाइजेशन. कोड ऑप्टिमाइजेशन में आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए. एंड इसमें लाइक जब आप सी प्रोफाइल करके या फिर लाइन प्रोफाइलर करके चीज़ है उसको आप चेकआउट कर सकते हो कि कैसे हम विजुअलाइजिंग कर सकते हैं रिजल्ट्स में कि क्या हमारा क्वेरी स्लो चल रही है या फिर क्या वो चल रही है. एंड एनालाइजिंग टूल्स के साथ आप यूज़ कर सकते हो कि क्या क्या वो टूल्स हैं जिसके साथ हम कोड ऑप्टिमाइजेशन के साथ जा सकते हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आपको कोई भी इस तरीके का कोड लाइक लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन वगैरह यूज़ कर सकते हो. एंड कौन सा वाइल लूप फॉर लूप कौन सा ज़्यादा फास्ट है वो भी चेकआउट कर सकते हो, वो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. So ये थे कुछ set of methods that how you can like optimize your the Django like you can say server, and this was a short video and maybe it has helped. So अगर आपको ये डेफिनेटली थोड़ा सा भी पसंद आया तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड ये इस वीडियो को शेयर कर सकते हो. अगर आपको कोई Django डेवलपर है या फिर आप किसी को जानते हो कि वो पाइथन या फिर Django में काम करता है तो इसको ये वीडियो शेयर कर सकते हो ताकि उसकी भी हेल्प आउट मिलेगी. एंड वन मोर थिंग, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. एंड अगर आपको एक फुल स्टैक डेवलपर बनना है तो आप न्यूटन स्कूल के साथ जा सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. एंड दिस इज इट फॉर द वीडियो. थैंक यू.